Hello and welcome to Ethical Manu, and today we are going to discuss in this session that why students of government schools in India are not able to read basic text. क्यों भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने स्टैंडर्ड से बिलो का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते हैं. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अपने स्टैंडर्ड से बिलो, विच मीन्स कि अगर 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, ही इज़ नॉट able to read the textbook of class 5th. Now this is a very big question, and this is an untouched issue which not many people have basically talked about. So I thought of making a session, making a video on this particular issue. It's a very important issue which has to be discussed, because when you talk about nation building, when you talk about development, education is something which has to take the cognizance, which has to be, people have to be on the toes all the time when it comes to education, and that's why we are discussing this particular issue. Now, before going into the issue, we'll try and understand what is the historical background of the Indian education system, because this is something which is related to education, and education is something which has a huge impact on the people's mind. So historical events obviously are very necessary to take into consideration when you talk about this. So first we will talk about the historical consideration. Macaulay's Minute. देखिए, जब ब्रिटिश लोगों का राज था, Macaulay's Minute फर्स्ट पॉलिसी इंटरवेंशन 1835 में आया, जिन्होंने बात की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. अब देखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, ब्रिटिशर्स वांट्स टू बेसिकली एजुकेट वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड दे वांट दीज पीपल टू एजुकेट the lower people, the other sections of the society in turn. एक तबके को वो पढ़ा दें, एंड उसके बाद वो जो लोग होंगे पढ़े लिखे लोग सोसाइटी के, वो नीचे के और बाकी लोगों को एजुकेशन इम्पार्ट करें. दैट वाज द आइडिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी. इट वॉज ऑब्वियसली अ न्यू एक्सपेरिमेंट, सो इट वॉज डन फर्स्ट टाइम इन इंडिया. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देन वुड्स डिस्पैच 1854, which was also known as a Magna Carta of the English education in India. इंडिया में सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन को यहाँ पे इम्पार्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंटरवेंशन जो ब्रिटिश लोग लेके आए, उसको कहा उन्होंने वुड्स डिस्पैच. यहाँ पे there was a huge plan with respect to the primary education, with respect to the secondary education and the higher educations. So इसमें उन्होंने कहा कि प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हम बात करेंगे, सेकेंडरी लेवल पे विल टॉक अबाउट इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस और द लोकल लैंग्वेजेस बोथ, एंड हायर लेवल पे हम इंग्लिश मीडियम को ही यहाँ पे एजुकेशन का मीडियम रखेंगे. देन द नेक्स्ट वन वाज 1934 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया टू रेगुलेट द हायर एजुकेशन इन इंडिया. देन वी हैव सर्टेन इनफॉर्मल schemes, Varda schemes on the basic education by the Indian National Congress 1937. Then very recently this policy intervention is very important, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, that is RAMSA 2009. It's a very important policy intervention taken by the government of India, which was focused on enhancing the quality of secondary education and increase the enrollment rate from 52% to 75% in 5 years in the government schools. That was very important. Look, so this was the historical background. RAMSA has been doing great. I mean, because and this I can say on the basis of my experience, because I myself belong to the state education department, so I can certainly talk about these things with you people. Now second one, national achievement survey. अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं. देखिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे talks about that India sees a drop in the learning outcomes in 3 years. 3 साल में इंडिया का जो एजुकेशन आउटकम है, लर्निंग आउटकम है, वो ड्रॉप हुआ है. अब देखिए, सबसे पहली बात तो नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है एवरी 3 years में, जहाँ पे स्टेटस ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं ये लोग. अब जब रिसेंट में आया तो उन्होंने बात की कि इंडिया का एजुकेशन जो है वो ड्रॉप हुआ है. सिमिलरली अगर एक और एजुकेशन सिस्टम रिपोर्ट की बात करें, ASER, that is Annual Status of Education Report 2014, 16, 18 and 20, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई है वो ये है कि क्लास 3rd में पढ़ने वाले कितने बच्चे क्लास 1st के टेक्स्ट बुक पढ़ पाते हैं, परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन हु कैन रीड एटलीस्ट स्टैंडर्ड 1 लेवल टेक्स्ट बुक. यहाँ पे बात है गवर्नमेंट स्कूल्स की. बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स स्पेसिफिकली. सो इफ़ यू
talk about these figures, देखो 2014 में it is 41%, 2016 में this is 37.9%, 2018 it is 41.8%, and 2020 it is 24.2%. That means 2020 में ओनली 24.2% थर्ड क्लास के ऐसे बच्चे थे जो कि क्लास 1 के स्टैंडर्ड 1 के लेवल का टेक्स्ट बुक पढ़ पाते थे. दिस वॉज विद रिस्पेक्ट टू द रीडिंग एबिलिटीज़, पढ़ना, रीडिंग एबिलिटीज़ की यहाँ पे बात की गई है. ऑल्दो इसमें अर्थमेटिक एबिलिटीज़ की भी बात की गई है विच इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट जस्ट बिकॉज वी आर taking into the consideration the basic textbook reading, we are going to only talk about the reading abilities. So आप समझ सकते हो कि 2020 में ये जो फिगर है वो 41 से 24 हो गया है, मतलब आप 1/3 से भी कम है. आप समझ सकते हो कि इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, दे आर नॉट एबल टू रीड इवन द बेसिक टेक्स्ट बुक ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच प्रॉब्लमैटिक द सिचुएशन इज़. यही नहीं, और भी मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ. सिमिलरली ASCR की जो रिपोर्ट हमने बात की उसमें यहाँ पर डेस्परेटली क्लास 5th के स्टूडेंट्स की बात की गई है हु कैन रीड क्लास 2nd लेवल टेक्स्ट बुक. अब आप देखिए इंडिया में कितनी सिचुएशन ख़राब है. कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 70%, 69% ये फिगर जाता है, जहाँ पे 70% ऐसे बच्चे हैं क्लास 5th के जो 2nd क्लास का स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं. वेयर एज ओवरऑल अगर आप बात करें तो सिचुएशन है 47.8%, एवरेज जो है वो 47.8% क्लास 5th के ऐसे स्टूडेंट्स इंडिया में हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के जो कि क्लास 2nd के लेवल का टेक्स्ट पढ़ सकते हैं. मतलब 50% से भी कम ऐसे बच्चे हैं. तो आप समझ सकते हो कि इंडिया में रीडिंग एबिलिटीज़ की स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है. अब आप देखिए ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, ASER reports, then some obviously surveys are also conducted. तो ये जो reports and surveys होते हैं इनका process is not that great. Some people used to put questions on the surveys and their process itself, but we need to understand that at the end of the day we must recognize the problem with the help of these facts and figures. If we don't have any facts and figures, we would not be able to substantiate all these things. So कहीं पर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा. अगर मान लो ये सर्वेस 50% भी सही हैं तब भी आप समझ सकते हो कि 50% का 50% भी तो कुछ कहता है. सो यू हैव टू थिंक विद दिस लॉजिक. अब आप देखिए हमने प्रॉब्लम की बात कर ली कि इस तरीके का प्रॉब्लम है जहाँ पे 50% से कम ऐसे बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के इंडिया में जो कि अपने स्टैंडर्ड से बिलो का टेक्स्ट बुक पढ़ नहीं पाते हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोनों लैंग्वेजेस की, ना ही हिंदी पढ़ सकते हैं ना ही इंग्लिश पढ़ सकते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच प्रॉब्लमैटिक इट इज़. अब देखिए अब हम बात करें प्रॉब्लम्स की, हमने बात कर ली, बट ऑब्वियसली आवर डिस्कशन वुड नॉट बी completed if we don't talk about the reasons rationally and if we don't talk about that how we can solve these problems. So अगर आप देखो reasons क्या हैं इनके, सबसे पहले मुझे लगता है एक indirect reason इसका हो सकता है poor infrastructure. देखिए I myself belong to the education department, so I have seen these things with my naked eyes कि education system इंडिया का बहुत ख़राब है. अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिलो स्टैंडर्ड्स है, बिलो स्टैंडर्ड्स. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक ना केवल डायरेक्टली बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है स्टूडेंट्स के माइंड्स को. अगर आपके पास एनवायरनमेंट अच्छा होगा, अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छी पढ़ाई होगी. बिल्डिंग्स में बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज आपको देखने को मिलेंगे. एडिक्वेट फर्नीचर नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, टॉयलेट्स एंड ऑल दीज हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रंस माइंड. सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो एजुकेशन है वो इम्पैक्ट होता है. सो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दूसरा हम बात करें इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. देखिए इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, most of the children belong to a lower economic background. Their parents are not that educated and there might be some historical reasons behind their economic backwardness, but the point is that just because of their economic backwardness they are not able to send their students to those schools where those schools basically I'm talking about the private schools where there the facilities are
above standards I can say. So economic backwardness कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टूडेंट्स के एजुकेशन में. अगर आपके पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं होंगे, अगर आपके पेरेंट्स आर्ग्यू नहीं कर सकते एजुकेशन अथॉरिटीज़ के साथ, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हो. एंड दिस इज समथिंग वेयर द सिचुएशन इज़ वेरी बैड. थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें, थर्ड रीज़न क्या है, डिजीज्ड एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स का बहुत ही बुरा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा. देखो, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं दे आर वेल एजुकेटेड, बट सिर्फ वेल एजुकेटेड होने से एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो जाएगा. वेल एजुकेशन का आपको जो बेनिफिट है वो तब मिलेगा व्हेन यू यूज़ योर एजुकेशंस. एंड ये मैंने देखा है कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स दे आर ओनली कंसर्न विद गेटिंग सैलरीज पर मंथ एंड दे आर नॉट कंसर्न विद मेकिंग दीज स्टूडेंट an unhuman asset, and this is the problem. So their disease attitude of not teaching their students to the best of their abilities is something where we have to talk a lot about this thing. We obviously take into the cognizance this issue that the teachers are not teaching the students properly. They are only concerned with getting salaries. और ये जो diseased attitude teachers का है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स का, वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे कर रहा है स्टूडेंट्स की एजुकेशन को लेके. और इसीलिए इस तरीके के फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्लास 5th का बच्चा भी क्लास 2nd स्टैंडर्ड के जो टेक्स्ट है उसको नहीं पढ़ पाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ नो डिटेंशन पॉलिसी. अब देखिए, कभी कभी गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसी लेके आती है जहाँ पे जैसे वी टॉक अबाउट इन राजस्थान, अप टू 8th स्टैंडर्ड्स यहाँ पे नो डिटेंशन पॉलिसी है, जहाँ पे बच्चों को फेल नहीं किया जाता. यहाँ पे बच्चों को फेल नहीं किया जाता, irrespective of whether he or she is able to be promoted to the higher class or not, irrespective of that thing, they're not supposed to detain in that class. तो ये जो no detention policy है, कभी कभी ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा होता है. स्टूडेंट्स सपोज दैट वी आर गोइंग टू बी प्रोमोटेड एट एनी कॉस्ट, सो वाई टू स्टडी. सो ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी इस तरीके की होती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. और हमको इस तरीके का डाटा सर्वेज के थ्रू मिलता है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी से छोटी क्लासेस का जो बेसिक टेक्स्ट है वो नहीं पढ़ पाते हैं. सेकेंड वन इज़ द शॉर्ट अटेंडेंस. अब देखिए, अटेंडेंस शॉर्ट होने का कारण है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में देखो अटेंडेंस को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. रीज़न बीइंग दैट जस्ट बिकॉज देयर पेरेंट्स आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर सपोज टू टेक द help of their students, their wards in their work, in what all work they are engaged in. तो अपने बच्चों की वो मदद लेते हैं. और वहाँ पे कई बार ऐसा हमने देखा है कि स्टूडेंट्स स्कूल जाने के बजाय अपने पेरेंट्स का साथ जो है वर्क करते हैं. उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका एजुकेशन इम्पैक्ट होता है. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग रीज़न. देन ऑब्वियसली द लास्ट वन इज़ illiterate parents. I've already talked about this. Illiteracy is something which has to be settled. अगर आपके पेरेंट्स इलिटरेट हैं तो आपके चिल्ड्रंस में भी वो चीज़ जाएगी. मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स इलिटरेट हैं तो चिल्ड्रंस कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते. ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट लॉजिकल, बट द फैक्ट इज़ दैट इलिटरेसी ऑब्वियसली हैज़ टू डू विद द करियर्स, हैज़ टू डू विद द एजुकेशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स. अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो अपने टीचर्स के, अपने बच्चों के जो टीचर्स हैं उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे, उनके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बातें नहीं कर पाएंगे, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पाएंगे. एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स अपने बच्चों का एजुकेशन को हैम्पर करेंगे. सो आई थिंक ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया में स्टूडेंट्स का लेवल, जिस लेवल के वो हैं उससे आपको एजुकेशन का लेवल कम देखने को मिलेगा. इन द एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड, दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबल वे फॉरवर्ड क्या है. अब आप देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स. हमें एवेलुएट करना पड़ेगा ऑन द नॉट ऑन द डेली बेसिस बट ऑन द ईयरली बेसिस पे एवेलुएट आप ज़रूर करो. इस तरीके से आप सर्वेज कंडक्ट कराओ जहाँ पे हम, अब जैसे ASER इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, जहाँ पे वो ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि क्या है स्टूडेंट्स का एजुकेशन लेवल.
सो ये बहुत ज़रूरी है। इवैल्यूएशन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फोकस ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड क्वालिटी लर्निंग। अब देखिए कुछ एक प्रोग्राम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SEQI, SEQI जो प्रोग्राम्स हैं। देन कुछ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने चलाए हैं, जिसमें निष्ठा ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे टीचर्स को ये स्किल्स इम्पार्ट किए जा रहे हैं that how can they deal with the students, how can they improve the educational qualities of their students by engaging them in activity based learning. Activity based learning बहुत important है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, it is majorly rote learning based system and we need to eradicate this system. That is very important to be understand over here. Then strengthening the competitive federalism. देखिए इंडिया में आपको पता है एजुकेशन इज अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। द थर्ड लिस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। दैट मीन्स दैट एजुकेशन इज रूल्ड, एजुकेशन इज गवर्नड बाय बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। दे बोथ कैन मेक रूल्स on the education system. So if state governments used to compete with each other on education, कि किस स्टेट में एजुकेशन का लेवल अच्छा है, अगर उसको लेके अगर आप पॉजिटिव कंपटीशन करोगे तो आई थिंक ये जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छा आएगा. सो दिस कैन ऑब्वियसली बी डन. देन ऑब्वियसली वी हैव टू टॉक अबाउट एंड रीथिंक अबाउट द पॉलिसी लूप होल्स. जैसे मैंने बात की नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में. सो वी नीड टू रीथिंक अबाउट दैट कि ये पॉलिसीज़ का कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स के एजुकेशन पर. So all that we need to talk about. Then you have incorporate best practices in the world for the better education outcomes. Obviously better practices of the world, that means we can look towards the western countries. Third world countries like India used to take into consideration the best practices of the western world most of the time. So I think we need to incorporate all the best practices in the field of education in India so that we can reach out to the level of their education system. That is all I can say. So this is it for this session. I hope you like and enjoy the session. You like and enjoy the knowledge that I have given and provided to you people. That's it for this video, guys. Till the next time, thank you and have a good day.